Jai Hind everyone, I'm Pankaj Kumar. Today's real lecture is about the evolution. So I would like to welcome you all and thanks for subscribing my channel and motivating me for making such a helpful videos. So this is you biology and let's begin the lecture with the Pankaj. Who is Pankaj? Pankaj is your today's okay now it's visible heart. Today's speaker of this lecture. So in evolution chapter if you'll see there will be four important topics which we are going to discuss. The theories of evolution, adaptive radiation, Hardy-Wingberg principle, and the human evolution. From these four chapters, like they ask so many questions. So there is a separate video for the previous year question solutions. You can subscribe and find the video for the previous year questions in the my playlist. So from this chapter, almost three questions will be asked. For the last year, they asked around four questions. For the last 3 years, before 2024, they didn't ask much question. One question they asked only. But if you go around 2016, 17, 18, 19, 20, 21, around that time, they asked so much of questions. So all over, you can take three questions from this chapter. It means almost 12 marks, and it will increase your rank in thousands. Okay, so let's begin it with this lecture. So evolution theories, the first point is what evolutions, as we seen in the video theory which we are going to see. In this we will see one spontaneous generation, Operan Halden experiment, Lamarckism and Darwinism. So let's begin with the origin of life. So there was a huge explosion with the high density and low gravity, like not tremendous of gravity and the high density matter. Even it was not a matter, something which cannot tell with a particular word, and it exploded a lot big. So it happened around 13.8 billion year ago, and it was told by Lemaitre. Lemaitre, Georges Lemaitre, who given the Big Bang theory, and he said there is a spontaneous, there is a small finite matter was there with high density, and it exploded tremendously. So it produces a lot of energy. What we are talking about? We are talking about origin of life. We are not talking about a spontaneous generation. We'll see. We'll come to this later. Okay. So is origin of life we are trying to figure out. So 13.8 billion year ago around, the universe started expanding, and then we can say the Big Bang happened around that time. So from that explosion, tremendous amount of energy comes out, and that is in form of heat specifically. And this big hot ball started becoming cold, and then it is expanded all around like this. Okay, from the small pinpoint matter with a high density, it started forming. It started forming a ring-like structure, and it is going to be form a space and time surface which is expanding again, like it is expanding very fast. Within a 10 power minus 27 second, it is expanding like in, billions of square meter. So it's expanding very fast. Now it is in expansion mode, but soon there will be one time when it is going to be uh, like it will reduce the size, and it will come again into small point, that is a something which is going to be called as a dark matter, or something which we will call as a black hole. So it happened around 13.7 billion year ago. It's a like big time. Like it's a long time, not big time. So
this is all about the thing. From this huge matter, like this energy, the earth form, and this earth is having around earth form around 4.5 billion year ago, and then life came around 3.5 billion year ago. What earth makes different from the other planet is that this planet have its own atmosphere. So because of that hot air, because of that hot bulky burning मैटर, सो जो वो बड़ा मैटर जल रहा था बार बार, उसके जलने की वजह से बहुत सारा भाप वगैरह निकला होगा, और बहुत सारा जो भी गैसेस निकले उसने इस अर्थ के एक वातावरण को बनाया, और इस अर्थ के जो वातावरण को उसने बनाया, धीरे धीरे वो क्या हो गया, ठंडा होने लगा, और बहुत समकूल वातावरण बनाया, जिसकी वजह से आज यहाँ पे जीवन है। जीवन कैसे आया अर्थ पे ठंडा होने के बाद भी, ये भी हमें बहुत अच्छे से नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि कभी भी कोई जीवन तब आ सकता है वातावरण में, जब वो अपने आप को वातावरण से अलग करे। तो अपने आप को वातावरण से कैसे अलग कर सकते हैं? कंपार्टमेंट बना के। सो कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ शुरू में, और उसी कंपार्टमेंट्स ने कहीं ना कहीं अपने आप की संख्या को बढ़ाया होगा। कोई एक बॉल बना, और वही बॉल मान लो, समझ लो अपने आप ही अपनी संख्या बढ़ा रहा है, तो वो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था। तो रेप्लिकेशन हुआ, देन मेटाबॉलिज्म हुआ उस कंपार्टमेंट में, तो फिर हम लोग कह सकते हैं हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, अर्थ में लाइफ आई है। तो उसके बाद से सबसे पहले जो अर्थ में लाइफ एग्जिस्टेंस कैसे हुई, कैसे धरती पे जीवन है, उसके लिए अलग अलग लोगों ने अपने विचार रखे हैं, जिसमें से हम लोग ने ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बात की थी सबसे पहले, और वो दिया गया था एरिस्टोटल द्वारा, हाँ। तो एरिस्टोटल ने इस थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस और स्पॉन्टेनियस जनरेशन दिया था, और इसके बहुत सारे समर्थक रहे हैं, लेकिन हम लोग महत्वपूर्ण एरिस्टोटल को ही गिनते हैं। तो एरिस्टोटल ने कहा कि देखो, ये जीवन एक प्रकाश के रूप में धरती पे आया, ईश्वर ने नहीं, मतलब प्रकाश पड़ी धरती पे, और उस प्रकाश से फिर जीवन की उत्पत्ति हुई। बहुत सारे जीव, एनिमल्स, या कुछ चार पांव वाले एनिमल्स जिए, कैटल्स आए, और उन्होंने कहा कि कोई भी जीवन अपने आप ही पनप जाता है, उसके लिए कोई केमिकल थ्योरीज वगैरह उन्होंने नहीं बताई। कहा कि अगर गेहूं है, तो गेहूं के बोरे में अचानक से अपने आप माउस आ जाता है। तो कोई भी मैटर हो जो उस मैटर के लिए जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो आ जाएगा उसमें जीवन। जैसे पानी मछली के लिए जीव इम्पोर्टेंट है क्या? पानी, तो पानी में ही अगर पानी रखोगे तो अपने आप मछली आ जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। लेकिन आपने अक्सर अपने गांव में देखा होगा, कि घरों में देखा होगा, कि अगर आप कोई भी खाने वाले सामान रखते हो, तो अपने आप कॉकरोच आ जाते हैं। और कोई भी खाने वाला गेहूं अगर कोई ड्रम है, तो अपने आप उसमें माउस आ जाते हैं। तो वो अपने आप तो नहीं आते, पहली बात ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन इन्होंने कही, और कहा कि गेहूं है तो माउस आ जाएगा, और माउस है तो फिर जल्दी से वो गेहूं के अंदर चला जाएगा, तो अपने आप वो पनप जाते हैं गेहूं में माउस। ये एरिस्टोटल का कहना था, बट ये थ्योरी गलत साबित हो गई जब लुइस पास्चर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने ईस्ट एक्सट्रैक्ट लिया था। ऐसे समझ लो कि ईस्ट एक्सट्रैक्ट में जहाँ पे शुगर वगैरह है, और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जी सकते हैं, मतलब उसमें मगोट्स, या फिर जो तितली की प्रजाति है मगोट्स, उसमें पनपते हैं। तो कहीं पे भी वो खाने वाली फ्रूट ही काट के रख दो, तो अपने आप उसमें छोटे छोटे एकदम मक्खी जैसे कोई जीव उसके आसपास भनकने लगते हैं। कोई फ्रूट काट कर रख दो, कोई मीट रख दो, कोई भी सामान खाने वाली चीज बाहर रख दो। तो कॉन्सेप्ट यही था कि हमको देखना था कि क्या अपने आप ही जीवन उसमें गेहूं में या कोई भी खाने वाले पदार्थ में पनप जाते हैं, या फिर जीवन बाहर से आता है। ये कॉन्सेप्ट था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि पहले जो भी खाने वाली पदार्थ है उसमें उसको पूरी तरह से गर्म कर दिया। गर्म करने से क्या होगा कि वो पूरे जो भी उसमें पहले से मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो तो मर जाएंगे। अब वो मर गए। अब उन्होंने इस तरह से इसके स्वान ने रखा कि उसमें कोई डायरेक्टली आएगा नहीं, आएगा भी तो भाप भाप बन के ऊपर इधर चिपक जाएगा, अंदर तक नहीं पहुंच पाता। ठीक।
फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने सारा का सारा एसेप्ट जो फ्लास्क लिया था एंड प्रिवेंटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एंट्रेंस। तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस एस शेप्ड फ्लास्क से अंदर नहीं आ पा रहा था। ये बात अभी हम लोगों ने चर्चा की। सो पास्चर ने क्या किया, पास्चर टिल्टेड द फ्लास्क एंड अलाउइंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एंटर द ब्रॉथ। थोड़ा सा उसको टिल्ट किया और इधर से ब्रॉथ से आराम से कनेक्शन हो गया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इधर आराम से आ गया। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इन ब्रॉथ में एंट्री की तो धीरे धीरे देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर भी पहुंच गए। तो उनका माध्यम क्या था, ये फ्लास्क में ये डायरेक्टली कनेक्शन, ये जो पानी, ये ईस्ट एक्सट्रैक्ट का जो कनेक्शन है, मतलब ये जो खाने की जो पदार्थ है वो यहाँ तक उसके मुंह, उसके नली के दूसरे छोर तक पहुंच गई, जिससे ऑर्गेनिज्म इसमें डायरेक्टली आ गए। दूसरा तरीका आप लोग क्या कर सकते थे, डायरेक्टली इन्होंने यहाँ पे तोड़ दिया इसको। जब यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से इसको तोड़ देते हैं, है ना, तो जैसे यहाँ पे डायरेक्टली तोड़ देते हैं तो डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, यहाँ पे डायरेक्ट इसके अंदर एंटर कर जाते हैं ना। तो इससे पता चलता है कि इस वाले केस में तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जिया आया, क्योंकि इसका फ्लास्क स्वान नेक था, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ रहा था, लेकिन इस वाले केस में आ गया। तो इसका मतलब कि जीवन जो होता है वो अचानक से नहीं आता, वो पहले से मौजूद जो जीव होते हैं उन्हीं के माध्यम से जीव की उत्पत्ति होती है। तो अचानक से तो जीव नहीं आते। तो इन्होंने थ्योरी दी, इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को नकारा और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को फिर उसके बाद से लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो यही था आज का लेक्चर। मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो कंटिन्यू करो। नए जो बाकी के जो टॉपिक्स हम लोग ने डिस्कस किए थे वो सारा अब हम लोग आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।